was अगर थोड़े से harsh words use करे तो I was thrown out of a shoot. So that's the harsh reality that happened to me. And एक egg के लिए इसको लिया गया और वो भी मुझे निकालने वाले थे. And then she scared me. She's like, बेटा तेरा यहीं से तू निकलेगी तो तू अच्छा करना पड़ेगा तेरे को. ललित सर के साथ ना मेरा एक झगड़ा हो गया. मुझे बोले कि तू अगर रोएगी नहीं ना तो मैं तेरे को असली में रुलाऊंगा. और मैंने गुल को फोन कर दिया. मैंने कहा गुल मुझे ऐसे कुछ नहीं करना है, ऐसा वैसा. फिर मैंने मम्मी को घर आके मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मेरे को नहीं करना शो, मेरे से नहीं होगा. I love शिवाय a lot और अभी भी मुझे वो बहुत पसंद है. इसके साथ तो मतलब वो एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं. One of the most adorable, genuine and talented people in the industry is Surabhi Chandna, and it's not like I have to say that or reiterate that. It is well-known fact in the industry as well. She is all hearts, and today joining her with me on a conversation for Dear Mom is her mother. I am so excited, Surabhi. Finally, both of you. Ma'am, thank you. Ma'am, Thank you so much for doing this. Yeah. But this, I want to tell you that before you start, please call her auntie. Yeah. Because Okay, you are a very so- dear friend to me, and ma'am does not sound nice from your mouth. तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि मैं आंटी बुलाने वाली हूँ. So I want to know now, आंटी पहले तो thank you so much कि आप ये कर रहे हैं हमारे साथ. And secondly, I want to know because Surabhi, whenever I am on set and whenever I see her, she's that bundle of joy, that energy, who is always hopping, who is always like ये करते, like you know, she's never like stable. How was she as a child? Was she this restless? बिल्कुल. जब ये छोटी थी ना तो ये भागती रहती थी. मतलब कहीं भी जाना है, भूख लगी है या मतलब कुछ भी और चीजों के लिए भी मैं कहती थी तू भागती क्यों है. और इसने एक बार अपने फ्रेंड का फ्रैक्चर करा दिया था. खुद भाग रही थी, फ्रेंड भी पीछे भागा और उसका फ्रैक्चर हो गया था पैर का. Really? हाँ. अच्छा ये मुझे आने पड़ी है. मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ना घर में भागती रहती थी. Actually so excited as a child कि मैं ना कोई भी चीज रैंडम पोटी आ रही है तो भाग रही हूँ, नॉर्मल कुछ भी है तो आ रही हूँ. That's what I wanted to say. कुछ भी रैंडम चीजों के लिए कोई रैंडम चीज के लिए मैं भागती रहती थी. I think that energy I still have, but of course I've sobered down a lot at home. बाहर I keep the energetic self. So yeah. But I want to know, though I can already see the answer कि आप लोग ज़्यादा friends ज़्यादा हो and mother and daughter type relationship कम है. But how has things evolved over time? Because obviously it takes time. या फिर बचपन से ही ऐसा था कि you were more of friends than like you know having that strict mother and daughter sort of a relationship. Not my friend. You know what I liked about her? I think she's always kept that. I have maintained a distance कि जब माँ की बात है तो माँ, और जब as a friend I have to tell her something तो as a friend. क्योंकि मैं भी इसको, मेरे हस्बैंड जनरली ट्रांसफर पे रहते थे तो मैं अपने ऑफिस की सारी बातें, हम दोनों, मेरी दूसरी वाली बेटी एयर होस्टेस थी तो उसका कोई टाइम नहीं होता था आने का. तो ये मेरे साथ शाम को, मुझे याद है, खाना खाने के बाद रोज एक एयरपोर्ट अथॉरिटी पे एक वॉक करते थे और ये मुझसे सारा कुछ पूछती थी. मम्मी आज उसने क्या कहा, आपके बॉस ने क्या कहा. तो मुझे याद है वो हमारा बॉन्ड डिफरेंट है. मतलब हम लोग एक दूसरे को सारी बातें, मैं इसको सब बातें बताती थी, मेरे बॉसेस से मेरा आज क्या हुआ सब कुछ. And some really very special friends also she's had. As in, you know, in an office, what happens? Like people, तो वो बातें मैं इसको क्यों बताऊंगी. no. Listen, I used to scan her phone also. मैं थोड़ी शकी किस्म की इंसान हूँ. बहुत शकी, कोई नहीं, बहुत मैं हूँ शकी है. थोड़ी शकी किस्म की इंसान. पापा के ऊपर भी शक, मम्मी के ऊपर भी शक. पता नहीं आगे क्या करेंगी. But this is my problem. मैं थोड़ी सी I doubt. Surabhi ने काफी careers jump किए हैं. I mean, she was doing something, then she decided to be an actor. So ये जब पहली बार आके आपको इन्होंने बोला कि she wants to be an actor, what was your response like? I really want to know. Yeah, I think मुझे कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगा. मेरी एक फ्रेंड होती थी ऑफिस में, she was also an actor and actress, और मतलब वो प्ले भी करती थी, बहुत कुछ था, और she was very good to me. तो मैंने उससे एक दिन पूछा ऐसे ही, इनको पता था मेरी फ्रेंड है वो,
तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार मैं भी ऑब्सेस्ड हो गई उससे कि भी वो जब बताती थी ऐसे ऐसे, तो मैं इनको बताती थी बच्चों को ऐसे ऐसे, वो आंटी ऐसे है ये है, तो इसको कहीं माइंड में आ गया कि मुझे भी कुछ करना है। तो ये मुझसे जैसे ही शायद 11th-12th में ही इसका मतलब मन होने लग गया था कि मॉम मैं ये करूंगी। पर मैंने इसको साइंस दिलवाई थी बिकॉज आई वांटेड हर टू बिकम इंजीनियर। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, तो आई थॉट कि भी चलो एक को नहीं तो Listen, I don't even remember when BMS. When I was doing my graduation is when I decided to Yeah. probably just Be an give it a actor. shot, because that auntie also told mama that let her try, give it a shot, and my mom is very encouraging, so she would take me for auditions. मैं इसको फिर इसका एक फोटो शूट कराया मैंने। हाँ, फोटो शूट कराया मेरा मम्मी ने। मेरी फ्रेंड से सारे नंबर्स लेके सब इसने हम लोग मतलब, और मम्मी को इतना चस्का था कि मेरी मम्मी ने भी एक पोर्टफोलियो कराया हुआ है बाय द वे। हाँ, so you have to release all those photos. I will show you, and she's looking stunning. तो मेरी फ्रेंड कहती थी चल शशि तुम भी कर लो ना, तुम भी कर लो, तू भी कर ले। मैं कहती थी नहीं मेरे बस की नहीं है, तो मैं सुरभि को, अगर सुरभि चाहेगी तो मैं इसे करा दूंगी। फिर क्या हुआ कि इसने ये BMS में, जब ये BMS कर रही थी तो फॉर्चुनेटली मैंने VRS ले लिया और मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट बेसिकली। अब लकीली क्या हुआ कि ये इसकी क्लासेस होती थी 2 बजे घर आ जाती थी, तो उसके बाद हम दोनों निकल जाते थे ऑडिशंस पे। She used to take me for auditions. She used to make me learn my lines. और बहुत ही ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज करती थी ये कि तेरे बस का ही नहीं है कि तू एक्टिंग कर ही नहीं पाएगी। नहीं इसको एक्टिंग नहीं करनी थी, इसको सिर्फ थोड़े से शूट्स मुझे एक्चुअली इतना पागलपन नहीं था। मुझे याद है मैंने इसको बोला था एक्टिंग का नहीं, तूने पढ़ना है आगे, बस जो करना है ना पढ़ाई। तो ये थोड़ी कुछ फोटो शूट्स कर ले, तेरा बहुत इच्छा हो रही है ना तो तू दो चार एड्स कर ले। तो मेरे को भी लगा एड्स कर लेगी, इसको भी तसल्ली हो जाएगी। She realized the competition and I'm और जब मैं इसको लेके जाने लग गई वहाँ पे मैं देखती थी 50-50 लोग, और मैं सुबह से शाम तक इसके साथ ऐसे बैठी हूँ, अंदर बैठी हूँ, बाहर बैठी हूँ, आराम नगर हर गली मुझे याद हो गई। और सुबह जाते थे और लकीली क्या था ट्रैफिक इतना नहीं होता था, तो मैं गाड़ी लेके आराम से जहाँ मर्जी पार्क कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज के टाइम में हम वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो दैट वाज द टाइम मैं जाके गाड़ी में कई बार कभी इसके साथ लोगों को देखती रहती थी, लड़कियां आती थी बेचारी, मतलब मेरे को रियलाइज हुआ कि सुरभि का एड्स में कोई चांस नहीं, बिकॉज़ दे यूज्ड टू बी वेरी pretty looking girls, मतलब ऐसे लंबे एक्सट्रीमली फेयर, एकदम लंबी, शॉर्ट नहीं, ये थोड़ी शॉर्ट है उसके हिसाब से। तो बड़ी मुश्किल से एक बार फर्स्ट जो इसको मिला उसमें जो इसका एड था ना वो बस ऐसे गई और ऐसे आई। पूरा दिन हम बैठे रहते थे कि अभी आएगा सुरभि का आएगा, सुरभि चिन्नी का आएगा, इतने में शॉर्ट चला जाता था। It was a big bazaar ad. It was a big bazaar ad, and I remember when you see that ad for the first time, so everybody used to be so excited. अरे अभी टीवी चला है, आने वाला, तो जब भी आता था एक ग्लिम्स आती थी मैं और चली जाती थी। उसके लिए मतलब मेरी कजिन्स जो थी, मतलब उनको सारा दिन बैठी रहती थी, कਦੋਂ आएगी मतलब पंजाबी में कब आएगा। कਦੋਂ आएगी। as a struggle, मतलब जो स्ट्रगल कर रहा है कुछ बनने के लिए, उनकी स्ट्रगल तो होती है, साथ में पेरेंट्स की अलग स्ट्रगल होती है, बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। आपके लिए जैसे आपने कहा वो आप हमेशा उसके साथ रहती थी whenever she is going for an audition or whatever, but has there been an instance when she has come out getting disappointed क्योंकि किसी ने बोल दिया कि अरे यार पहले काम तो सीख के आ जाओ? बिकॉज होता है, बहुत बार होता है। एक इंसिडेंस मैं आपको बताऊंगी कि that was very disheartening, और suppose that she took me to eat pav bhaji and idli, by the way, because that was my comfort food. I was in अगर थोड़े से harsh words use करे तो I was thrown out of a shoot. So that's the harsh reality that happened to me. And एक एड के लिए इसको लिया गया और मैं बाहर बैठी थी and she was getting ready. Next 15 मिनट में इसका शूट था, इतने में somebody came from the direction team कि मैम पता नहीं क्या बोला इसको, तो ये आ गई ऐसे आधा मेकअप छोड़ के, और मैं इसको देख के मैंने कहा क्या हुआ बेबी, तो बोलती है कि मम्मी कुछ नहीं, चलो थोड़ा चलो। तो मुझे समझ में आ गया कुछ तो है, मैं नीचे गई। तो पर हम लोगों में पेशेंस बहुत है दोनों में। मैं 6 घंटे इसके साथ बैठती थी, ये 6 घंटे बैठती थी ऑडिशंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक लंबी लाइन लगती बाहर तक, आपको तो पता ही होगा, बाहर तक लाइनें लगी रहती हैं। But this is about to shoot. How I was basically. That's what I am telling her कि हम लोग पेशेंट हैं बहुत ज्यादा दोनों,
तो हम लोग नीचे गए, मैंने इसको बोला क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, तो बोलती कि वो उनको कोई और लड़की चाहिए। मतलब मैं हैरान हो गई। मतलब when you reach the set, you start getting ready, and then you've been told that no, I think somebody other has been basically you don't fit the bill. Auntie, I really want to know, after all this, when she finally, like, you know, I know that Ishq Pass changed everything for her. Like, uske baad to it became like she became a rage, and she is still a rage. I mean, you know, वो stardom जो बोलते हैं हम, आपको कब realize हुआ कि आज वो इतना बड़ी बन चुकी है? नहीं, मेरे को कबूला के टाइम में ही मैं एक बार मॉल में गई, तो मेरे आगे ये थी और उसके बाद मैं पीछे थी, और उसको उसे नहीं मालूम था, वो लड़की को जो स्कैनिंग कर रही थी कि ये मैं इसकी मदर हूँ। जैसे ही उसने इसको देखा ना, कबूले है, वो डांस करने लग गई। तब मेरे को फर्स्ट टाइम लगा कि अच्छा, अब मतलब ही सुरभि को लोग पहचानने लगे हैं। That was the first time that I could know कि भी हाँ, अब जो है सुरभि को लोग जानते हैं। But of course after Ishq Pass तो it was a different thing altogether. I remember so life changing. It was life changing. And she would actually come to me and tell me that मुझे genuinely नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी acting करती है. That was the biggest compliment of my life, because I remember when she used to take me for auditions and she used to make me learn the lines. She used to actually, like any mother or anybody who's close to you should be there to criticize you or even appreciate you when you're doing your your best. And she would actually put me down saying कि नहीं हो रहा तुझसे, नहीं कर पा रही है तू. It only bettered me every now and then, you know, even during Tarak Mehta. She would sit around रात भर मेरे को लाइनें कराना. तारक मेहता की एक बात बता, वो भी मुझे निकालने वाले थे. And then she scared me. She said, बेटा तेरा यहीं से तू निकलेगी तो तू अच्छा करना पड़ेगा तेरे को. So you know, but I think little bit of that motherly instinct that comes on, वो हुआ ना, I think. और फिर उसके बाद मुझे खुद ही बोलने लगी यार, when I won a lot of awards, वो से तो कहाँ से सीखी, कहाँ से है ये सब. तारक मेहता का जो प्रोड्यूसर सर हैं असद जी, एंड वो उनको लगा कि शायद मेरे बस का नहीं है. हम लोग एक बार ऐसे तैयारी हो रही थी तो वो आए, मुझे कहने लगे वो मुझे कहने लगे मैम ये जो 4 एपिसोड है वो सिर्फ इस पे ही बेस्ड है, मतलब किसी की कैरेक्टर पे है. हाँ, इसी कैरेक्टर पे है. So she has to do it properly. She has to do it. तो मैं तो डर गई, ये तो गई काम से, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली उन्होंने ये बात कही ना, तो मैंने कहा, उन्होंने जैसे ही बोला कि आपको ये तो देखिए मैम आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब फिर हम समझ गए. पर ये लड़की ने वो क्या किया पता नहीं, मैजिक कर दिया. मुझे भी नहीं पता मैंने क्या किया, because they still show those episodes by the way. But my mother always sees the goodness in things. और ये चीज मैं शायद इनसे सीखी हूँ कि to see all the goodness in all the tough times, in bad times. वो अभी भी मुझे यही, मतलब अगर मैं कभी कभार I'm just low, जैसे इश्क पास के लिए मुझे 1 साल वेट करना पड़ा. And there was a time when I would tell her कि यार मेरे से ना हो बे, मैं नहीं कर पाऊंगी, I am just giving up now. So they would tell me, अरे when it has to happen, it will happen, it will come. And then what that show gave me was, मतलब कोई उसकी कोई वो तो बात ही नहीं करती. और उसके लिए मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि तूने ये एक्टिंग सीखी कहाँ से. हाँ, मैं अभी हाँ, ये काम अच्छा ही कर रही है. Thank you for coming to the point. मैंने जब से देखा है तब से मुझे तो ये बड़ी अच्छी एक्टर लगी, और मुझे ऐसा लगा है कि अरे यार कैसे कर लिया है इन्होंने ये सारी चीजें. कैसे कर लेती है. ये बहुत लोगों से इंस्पायर भी हुई है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसको ना ये लगता था कि लोग 1 मिनट में कैसे इतने बड़े-बड़े डायलॉग्स याद कर. मतलब I have always been a fan of watching television. And watching everybody's work, and I've always told, my mom used to watch a really good show called Jyoti, which had Sriti Jha, you remember? And Sneha, I don't know her full name, जो main lead में थी, जो lead कर रही थी show को, वो मतलब वो एक show है. I'm just giving one example, but she also loves a lot of good content on television. She cannot watch the typical TV shows. And इनके type of shows देख के ही शायद मैंने I would sit with her and watch people perform, and मैं सोचती यार ये करते कैसे हैं. और I think शायद वहीं से inspiration ले लेके
देखिए क्या होता है कि ऊपर वाले का जो हाथ है ना वो भी बहुत जरूरी है। हाँ। तो ऊपर वाले ने इतनी ग्रेस दी है, उसकी बहुत बड़ी कृपा है हम पे। मेरी माँ की, मेरी जो गुरु माँ है उनकी बहुत कृपा है। So now we are going to move to our next segment, which is called Up Close and Personal. आंटी, मुझे जानना है कि I still remember मेरा first ever interview जो सुरभि के साथ था, that was इश्कबाज को I think 1 साल हो गए थे. And I remember she told me that initially for the episode she had to gain a little bit of weight. And उस वजह से इनको काफी trolls हुए थे, काफी लोगों ने वेट पे कमेंट किया था. How did it affect you? Because it becomes your responsibility at that time to handle her, to make sure her confidence doesn't falter, you know, at that point. तो आपने कैसे उस वक्त इसको संभाला? नहीं, जब ये बोलती थी कि ऐसे, और मैं इसके सारे जो लोग लिखते थे मैं सारे फॉलो करती हूँ, कौन क्या लिख रहा है, कौन इसकी अच्छाई लिख रहा है. मेरी आदत है कि मैं अभी भी देखती हूँ कि इसके फॉलोअर्स ने क्या क्या लिखा है. But can I tell you something before she says this? I think I'm the last person who gets affected. Yes. There is little bit that might just hit me, but I don't let it falter me or let it affect me so much. And even till date, I'm like that. Ask her. कभी ऐसा हुआ है, सच बताना, कि आके रोई हो ये कि you know किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पे? तो वहीं के किसी ने कुछ कह दिया, मतलब ये बहुत जल्दी क्रिटिसिज्म लेती नहीं है क्योंकि ये बहुत परफेक्शनिस्ट है. इसने आके 1 महीने के अंदर वेट इतना कम कर दिया, वो अभी भी मैं इसको बोल रही हूँ कि वही चीज आनी चाहिए. मेरे एक बॉस थे नहीं, और ललित सर भी ललित सर के साथ मेरा एक बार झगड़ा हो गया था. हम लोग अभी still laugh about it because I was very poor in emotional scenes, very poor, and I have always told everybody that I think that is one area I lack the most. बट अभी तो वो बहुत अच्छा करती है. अरे चलो यार, टच वुड. हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी भी स्ट्रगल है, मुझे मालूम है. It still gives me those jitters, but what I'm trying to say is that ललित सर के साथ ना मेरा एक झगड़ा हो गया. मुझे बोले कि तू अगर रोएगी नहीं ना तो मैं तेरे को असली में रुलाऊंगा. और मैंने गुल को फोन कर दिया. मैंने कहा गुल मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा वैसा. फिर मैंने मम्मी को घर आके मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मेरे को नहीं करना शो, मेरे से नहीं होगा. There was one point when I said मुझसे नहीं होगा. And that क्या होता है, जो प्यार करता है वो हाँ, तो सब, और वो सबके सामने बोल दिया. हाँ, ललित इसको ये बात का बुरा लगा कि मेरे को सबके, मैंने कहा देखो जब काम चल रहा है तो सबके सामने ही बोलेंगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है. और ये इश्बास के टाइम I used to break down a lot. So there are some moments. आंटी मुझे आप बताइए, मैं शिवाय और रनिका की बहुत बड़ी फैन थी, हमेशा से थी. आपको उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती थी? मैं भी बहुत अच्छी, अभी भी ऐसे लगता है कि they should work together. I love शिवाय a lot, और अभी भी मुझे वो बहुत पसंद है. इसके साथ तो मतलब वो एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं as characters. हाँ, बहुत ज्यादा. तो I was so in love with their chemistry. She was a fan. I was a fan. She was a. मैं रात को 2 बजे तक सबके कमेंट्स देखती थी, किसने क्या लिखा. She used to be a big fan. Yeah. I am still. You still are. Yeah. Fan of my daughter. And मुझे लगता है कि मेरी बेटी से अच्छी एक्टिंग कोई कर नहीं. बस बोल दिया, अब तो बोल दिया. Please take it back. जो बात सच है वो सच. So आंटी मुझे आप ये बताइए, पहली कौन सी चीज थी जो सुरभि ने आपके लिए खरीदी when she finally like you know became an actress, or when she got her first big paycheck, like big paycheck, क्या खरीद के दिया इन्होंने? नहीं, इसने मुझे पूरा चेक ही दे दिया था जब ये BMS में She said a big paycheck, babe, I got you the car. She got me car, but which she uses for herself only. How come? Excuse me. But no, अभी मैंने उसके पैसों से क्या लिया है? हाँ. She is very fond of jewelry. I bought a very good piece of necklace. हाँ. And I gifted her a car actually. मेरी माँ बहुत ही शौकीन है, किटी पिटी पार्टी जाती रहती हैं, और खुद ही मतलब she's always been very independent because my father always had a transferable job.
तो हमारी माँ ने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में बिल्स बनाने, चेक्स, ये वो सब साइन करने, पूरे घर संभालना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था. लाइक आई मीन, सो शी इज बीन सो इंडिपेंडेंट ना. तो अभी भी कार लेके इधर निकल जाती हैं, कभी उधर किटी, कभी इधर मॉल. वी कॉल हर आवारा. शी इज द आवारा ऑफ द हाउस. तो हम लोग जैसे संभाला और ये मुझे आवारा बोलती है. She is such a big आवारा. And we used to I used to come shoot के बाद तो इनको सबसे पहला सवाल मैं ही पूछती थी, आज कहाँ आवारागर्दी की? तो then she tell me, आज मैंने ये किटी किया, वो किटी किया, आज मैं ये मॉल गई, मैंने ये खरीदा. So then I said that she needed a car which was automatic. She was using that car. Yeah. But now I have to ask you, auntie, this thing ki, you know, every actor, while there are a lot of perks of being an actor, there is also a downside. Your personal life gets questioned, gets asked, and उसके बारे में लोग comment भी without knowing बहुत ज्यादा करते हैं. कभी अफेक्ट हुआ है आपको? इसकी बहुत ही ऐसी फैमिली नहीं है जो हमें मालूम है कि what she is doing and till where she can go. I mean, इतना तो हमारी फैमिली बहुत ही ऐसी बॉन्डिंग है ना, हमें मालूम है कि ये कहाँ तक जा सकती है. That's all. बस इतना ही है. और but I'm not affected with all that. But we've always firstly I don't have too much of a personal life, mom, and it's not out there. I don't want to talk about it because there's nothing to talk about. And जब भी मैं कभी शादी करूंगी तब देखी जाएगी यार. अभी तो ये सब अभी काम पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है. But thank you so much once again. Thank you. Thank you.